Hello everyone and welcome back to my another video. In today's video, I'm going to tell you that how I was able to score 96% marks in my CBSE class 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड क्या चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप अभी क्लास 10th में आए हैं टू स्कोर 96% or even more than that. We are going to talk about strategies topic wise, what things you have to avoid, what things you have to do, and subject wise analysis. So, let us start our video. First of all, have a look at my mark sheet. You will observe and will get a proof that how much marks I was able to score. First of all, in English, I have scored 94 marks. Then in Hindi, 95 marks. In Maths, 95. Science, 93. And Social Science, 96. And the additional subject, which is Artificial Intelligence. In that, I have scored 100 out of 100 marks. And I have got even in all of the subjects. So you must also adhere to the things which I have took care to score this much marks. अभी तक हमारे पास कोई information नहीं है whether the board exams are going to be there or not, but this is final that you have to give your class 10th exams, whether it will be in your school or it will be in the board. So you have to do the same things for both the exams. And if आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे then they are going to be more difficult than the level of CBSE board exams. So just be careful while analyzing. And I know that you will be able to score this much marks very, very, very easily. So let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट मेरे जो प्री बोर्ड्स हुए थे स्कूल में उसमें कितने मार्क्स आए थे एंड दिस इज टू टेल यू दैट जो मेरा स्कूल था उसका जो प्री बोर्ड का लेवल था दैट वाज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स लेवल आई डोंट नो इन विच एवर स्कूल यू आर बट अगर आपके स्कूल का लेवल प्री बोर्ड का high है then you are 100% going to uh, will be able if you are scoring good in that one so you will surely score good marks in boards also. So I'm going to tell you my marks. In English it was 75 marks. In Hindi it was 73 out of 80. I'm telling you. In maths it was 65. In science it was 72. In SST it was 70, and in computer it was 49 out of 50 marks. So this is what all I have scored in my pre-boards, and the level was very high, and the level of board exams was comparatively similar to that of our pre-boards exam. This is what all I can tell you about my school. So now proceeding further, the subject-wise strategy you must adopt to score at least more than 90 marks that I'm going to tell you now. First of all, talking about English and Hindi. You have to read all the NCRT, whether it is that main book, the supplementary book, and in Hindi also,
the main book and the supplementary book, you will get two books. Have to read the NCRT thoroughly. Thorough reading. And thorough reading means you have to underline the new words which you are uh, getting from chapter wise, and you have to write their meanings over there only. So that if you are going to uh, read that again, then you will get the meaning of that word very easily without any effort to make it memorize again by searching it on any other platform like Google or any other one. So just be careful to write the meanings over there. And this is to tell you जो आपके new words chapter में होते हैं, they are very very helpful in increasing your the level of answers you are going to write in exam. You can say that they are going to provide the next level to the answers you are going to write. That will enhance your answers. The quality of answers will be enhanced. Then even if you will make a small mistake, अगर आप फिर एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं, then examiner can ignore that mistake. If you have used that enhansive words, that good words which a teacher wants from you, especially English and Hindi teacher. So this is what you have to take care about from the NCRT, and just read the meanings given in the book itself for once, because I don't think that you have to cram that meanings, because no one is going to ask you any meaning from there, but you have to read it once at least. This is what I from the NCRT we can expect. The question answers you have to solve, and that is all done for NCRT. Now coming to the second point, that any reference book required. So yes, reference book is required. Only one reference book in which you will get the required things which I am going to tell you क्या क्या required things होनी चाहिए उस book में. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सेंट्रल आइडिया लिखा होना चाहिए चैप्टर्स का. सेकेंड थिंग इज उसमें पोएटिक डिवाइसेस मेंशन होने चाहिए. थर्ड थिंग इज उसमें ग्रामर की एक्सरसाइज होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग इज अनसिंग पैसेज होने चाहिए. ये दोनों के लिए है, इंग्लिश और हिंदी के लिए, दोनों के लिए है. दैट उसमें ये चार चीजें होनी ही चाहिए अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेते हैं. ऑफ कोर्स मैंने भी बुक ली थी, बट मैं किसी बुक का नेम नहीं लूंगा बिकॉज जो बुक्स मैंने ली थी दे आर हार्ड टू फाइंड फ्रॉम एनीवेयर. सो आप इतना लोड मत लीजिए कहीं से भी ढूंढने का. आई एम टेलिंग यू, आप अपने पास वाली स्टेशनरी शॉप पे जाइए एंड आस्क देम फॉर द रेफरेंस बुक्स फॉर इंग्लिश एंड हिंदी फॉर क्लास 10th. एंड वहीं पर ही अगर आप उस बुक को खोल के देखिए बहुत सारी को, एंड कोई आपके लिए वर्कलोड इजी करके नहीं देने वाला है जो कि आपको सीधे सीधे बुक का नाम बताएगा. इट इज वट ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी बुक समझ में आ रही है. और उसमें मैंने आपको चार चीजें की कैटेगरी बता दी है कि दीज फोर थिंग्स आर मस्ट. ये चार चीजें किसी भी हेल्प बुक में होनी ही चाहिए. देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, this is going to be an optional point for you that you can approach for a coaching for the grammar purpose. Grammar, I know that जो स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे टीचर्स के पास they have a workload to finish all the syllabus regarding the question answers and the grammar, also the writing skills, and there are many curricular activities also which our teacher has to take care in the school. So for that you can approach for a grammar tuition, especially where grammar and writing skills are focused. So you can approach for that. Or what all you can do is to, without
if you are not able to afford, or if you are comfortable, then you can approach that grammar portion the same thing from YouTube videos, because you know that in the current scenario you can get any of the videos from the YouTube itself. So instead of wasting of your time, when you are free, you can watch to such YouTube videos where you will find grammar portion itself. And I won't recommend any channel. You have to search it yourself that which channel is best for you, or the channel which is explaining, from which you are gaining many of the things जिससे आपको समझ में आ रहा है. You have to take care about, you have to look for that channel. Now the next thing is you have to solve sample papers. You have to mean start solving sample papers from 2 months before of the exam. आपको एग्जाम के 2 मंथ्स पहले से ही सैम्पल पेपर्स करने स्टार्ट कर देने हैं. I would say the official sample papers released by CBSE, and this is to tell you आपका एग्जाम हो ना हो CBSE का, CBSE sample papers release जरूर करेगा. So you have to solve that sample papers at least 2 months before the exams. Next thing you have to take care is that uh, you have to approach, if you want, that is optional, because even I didn't do that. You don't have to uh, do the PYQ questions of English and Hindi both, because you know that in the PYQs the type of grammar was different, because in the current scenario जो हमारी ग्रामर आती है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है, पहले से चेंज हो चुकी है. सो जो पहले वाली ग्रामर है वो बिल्कुल भी हमारे काम नहीं आने वाली है. एंड जो क्वेश्चंस होते हैं राइटिंग स्किल्स एंड ऑल के, वो भी हमें पुराने वाले सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि पुराने वाली जो चीजें थी वो नई में रिपीट नहीं होने वाली हैं. इन इंग्लिश एंड हिंदी, refer to these things in English and Hindi only. बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है, if आप पहले ही सारी चीजें कर चुके हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट. बहुत सारी बुक्स आती हैं हमारी मार्केट में PYQ की, जो कि लास्ट 10 years 7 years के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करते हैं. सो जस्ट गो फॉर दैट. So this is what all I can tell you about English and Hindi, and this is what all I have done. Now see, some of you might think that reference book कौन सी लेनी चाहिए, इसमें आप कंफ्यूज हैं. तो अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, then do comment me down in the comment section, and then only I have to help. But I know that you will get it, because I cannot tell the book जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए, क्योंकि हर किसी को किसी भी बुक से समझ में आ सकता है. बट मैंने एक बुक की रिक्वायरमेंट बता दी कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. सो दीज 4 थिंग्स मस्ट बी देयर, एंड सैम्पल पेपर्स आपको लगाने ही लगाने. एंड जो सेंट्रल आइडिया है इसका, चैप्टर्स का, वो आपको एग्जाम से, जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, उससे आपको 1 day बिफोर जरूर पढ़ के जाना है सारे के सारे चैप्टर्स का, वेदर इंग्लिश इट इज ऑफ इंग्लिश और हिंदी. एक दिन पहले आपको हर चैप्टर का सेंट्रल आइडिया जरूर जरूर पढ़ के जाना है, बिकॉज इससे हमें एक तो पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाता है, एंड सेकेंडली हमें जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बताए थे आपको, न्यू वर्ड्स, वो भी हमें रिकैप हो जाते हैं, एंड अगले दिन हम उसको अच्छे से कर पाएंगे. बट डोंट डू इट just on the day of exam in the morning, because that is going to be a trouble for you. इंग्लिश और हिंदी में मैं कहूँगा आपको एग्जाम वाले दिन सुबह उठ के कुछ भी नहीं करना है,
आपको जो भी करना है एक दिन पहले ही करके at the 10 p.m. you have to sleep by closing all of the things. Not even a single thing after that. ये हो गया हमारा इंग्लिश और हिंदी के लिए बिकॉज यही चीज मैंने भी करी थी एंड इसमें कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है दीज आर जस्ट द नॉर्मल थिंग्स जो कि कई बच्चे अवॉइड कर देते हैं बट यू हैव टू टेक केयर बिकॉज ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता चल पा रहा है देन प्रोसीडिंग फर्दर for the next subject, which is maths and science. मैथ्स और साइंस में अगर हम बात करें तो हमें एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है एंड इंग्लिश हिंदी की तरह मतलब उसमें तो अगर आप नहीं ले सकते तो चल जाएगा रेफरेंस बुक मगर मैथ्स और साइंस के लिए तो रेफरेंस बुक मस्ट है मस्ट मस्ट मीन्स चाहिए ही चाहिए एक बुक बिकॉज एनसीईआरटी से कुछ नहीं हो सकता यू विल लिसन टू मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स और फ्रॉम द वंस जो कि पास कर चुके हैं कि एनसीईआरटी से ही आता है एग्जाम नो एनसीईआरटी से एग्जाम नहीं आएगा आपको अलग से भी क्वेश्चंस को रेफर करना पड़ेगा हायर लेवल के एनसीईआरटी के उससे भी ज़्यादा हायर लेवल के हॉट्स क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड इसके लिए आप कोई भी मार्केट में जो फेमस बुक्स हैं फेमस बुक मींस जो आप अगर स्टेशनरी शॉप पे जाएं और वो आपको जिस भी आप उसको बोल सकते हैं कि कौन सी बुक फेमस है सो नाम लेना फिर मैं यहाँ पे सही नहीं समझूंगा क्योंकि फेमस बुक मींस फेमस बुक्स से मैंने भी फेमस बुक से ही पढ़ा था मैथ्स और साइंस में तो मार्केट में 3-4 बुक्स हमारी फेमस है और वो सब में सेम ही चीजें हैं आप एक बारी शॉप पे जाके सारी बुक्स को देखिएगा एंड जो आपको उसमें से बेस्ट लग रही है दोनों के लिए वही वाली आप ले लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी बुक में बिकॉज सब में ऑलमोस्ट सेम मटेरियल ही आपको मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट ऑफलाइन कोचिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड आपको कोचिंग चाहिए ही चाहिए अगर आपका स्कूल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है जिसमें आपको लग रहा है कि हमें नीड नहीं है देन यू कैन स्किप बट आई नो जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा भी स्कूल काफ़ी अच्छा था बट स्टिल I was not satisfied with what all I was getting from the class. क्लास से जो भी मुझे मिल रहा था I was not satisfied with that. So for that reason I would suggest you to go for ऑफलाइन कोचिंग अब ये भी आप लोग पूछेंगे कौन सी हमें लेनी चाहिए जिस कोचिंग आप फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टू टेल यू कि कोई एक कोचिंग फिक्स नहीं होती है आपको पहले 3-4 जगह 5-6 जगह एंड इनफाइनाइट टाइम्स आपको 3-4 जगह कोचिंग ट्राई करनी पड़ेगी ट्रायल क्लासेस यू हैव टू अटेंड एंड इफ आपको जिसमें भी सबसे बेस्ट लग रहा है वही कोचिंग आप प्रेफर कर लीजिए बट दिस इज टू टेल यू दैट आप कोई ऐसी जगह मत ज्वाइन करिएगा जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाए जाते हैं बिकॉज वहां पे जाके तो आप टाइम पास ही करके आएंगे दिस इज 100% गारंटी आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मैथ्स अलग पढ़ाई जाती हो साइंस अलग पढ़ाई जाती हो अलग अलग टीचर्स के पास आपको जाना पड़ेगा फॉर क्लास 9 तक इट इज गुड दैट आप एक ही टीचर के पास जा रहे हैं सब कुछ पढ़ने बट 10th के लिए कोई एक टीचर किसी भी सारे सब्जेक्ट में मीन्स अच्छा नहीं होता है so just go for different coachings and this is to tell you अगर आपके आसपास कोई अभी अभी क्लास 10 से क्लास 11th या 12th में मूव करा है या वो एक स्टूडेंट है सो आप उससे भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर द ट्यूशंस बिकॉज जो अभी अभी बच्चे उस बोर्ड को पास करके निकले होते हैं they have a very very well
इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट करिकुलम सिलेबस एंड ऑल, तो आप उनसे भी कोचिंग के लिए बात कर सकते हैं। इफ वो एक्सेप्ट करते हैं देन आप उनसे पूछ सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक अगर आप उनसे बात कर लेते हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट की। सॉल्व एंड रीड एनसीईआरटी एटलीस्ट 5 टाइम्स। आपको कम से कम 5 बारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है और सॉल्व भी कर लेनी है। पढ़ लेनी है हमें दोनों के लिए, मैथ्स के लिए भी साइंस के लिए भी। अब आप मैथ्स से बोलेंगे हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में। सो डियर ऑल, हमें मैथ्स में पढ़ना होता है जो भी जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया होता है तो उससे पहले हमें थ्योरी पार्ट दिया हुआ होता है बुक में ही, इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ। वो आपको पढ़ना है। वो आप एक बार ही पढ़ के छोड़ सकते हैं, बट साइंस के लिए तो आपको कम से कम 5 बारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। 5 बारी सारी की सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करने हैं, नॉट अलग अलग बारी कि आपने एक बारी एक चैप्टर का कर दिया दूसरी बारी दूसरे चैप्टर का, नहीं। एक साथ आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्व करने हैं एंड एक साथ आपको 5 बारी ऐसा करना है फॉर साइंस। एंड मैथ्स भी सेम, आपको 5 बारी सारे सारे चैप्टर्स के सारे सारे क्वेश्चंस एक बारी में सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। सैम्पल पेपर मैं कहूंगा सीबीएसई वाले तो आपको करने ही है ना। आप जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आएगा बहुत ज्यादा टफ लेवल का पेपर आता है, और जो पेपर जो एक्चुअल बोर्ड का एग्जाम होता है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। दिस इज आई व्हाट आई हैव गेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। मेरे टाइम में इतना डिफिकल्ट जो सैम्पल पेपर था वो आया था सीबीएसई की साइड से, that we all were scared. Actually, not was sample paper, that was practice paper which was released by the CBSE itself. So वो बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए करना, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट इसी लेवल का पेपर आना चाहिए, बट नो, द पेपर वाज वेरी सिंपल फ्रॉम दैट लेवल। उस लेवल का पेपर था ही नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और पी वाई क्यू क्वेश्चंस मस्ट है करने पहले के क्वेश्चंस क्योंकि कई बारी एज इट इज आपके पास आ जाते हैं। सो ये भी आपको जरूर जरूर करने हैं। मैथ्स और साइंस की जो आप प्रेफरेंस बुक लेंगे उसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करूंगा कि उसमें एक शॉर्ट रिकैप भी होना चाहिए हमारे पूरे चैप्टर का, ताकि अगर हमें चैप्टर को जल्दी जल्दी फॉर्मूलेस देखने हो मैथ्स के या फिर साइंस का, हमें चैप्टर रिवाइज करना हो तो हम उसको फटाफट से रिवाइज कर सके। क्योंकि जो ऐसी बुक्स होती है उसमें मैथ्स के एक तो फॉर्मूले सब एक साथ लिखे हुए होते हैं, और सेकेंडली साइंस में जो पूरा चैप्टर होता है वो पॉइंट्स के फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं। सो ऐसी ही बुक आपको लेनी भी चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग जो आती है कि आपको सारा का सारा कोर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी है, ताकि आप दोबारा से रिवीजन कर सकें काफी बार। बिकॉज अगर आपका सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा बिल्कुल लास्ट तक भी, तो फिर तो आप रिवीजन कर ही नहीं सकते। सो जल्दी से जल्दी आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। एंड आई नो दैट जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है पहले से, पहले के जितना लेवल नहीं है। सो आई नो दैट यू विल बी एबल टू फिनिश दैट सिलेबस as soon as possible. देन ये था हमारा मैथ्स एंड साइंस के लिए, एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। ये जो चीज़ें बताई गई हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं फॉर मैथ्स एंड साइंस। एंड इसमें जो कोचिंग थी उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आपको भीड़ के साथ कभी भी नहीं पढ़ना है। जस्ट रिमेंबर दैट जो आपकी क्लास के बच्चे हैं, मीन्स क्लास 10th के बच्चे, वो मैक्स टू मैक्स 20 बच्चे होने चाहिए आपके साथ एक साथ।
आपको ऐसी जगह नहीं पढ़ना है जहाँ पे कम से कम 70-80 बच्चे एक साथ मिलके पढ़ाए जाते हैं। बिकॉज आई नो कि कहीं जगह, कहीं हमारी क्लास के भी बच्चे ऐसी ही जगह पढ़े थे जहाँ पे 50-60 40-50 बच्चे एक साथ पढ़ाए जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू स्टडी एट दैट प्लेस। मैक्स टू मैक्स 20 स्टूडेंट्स इन अ बैच। Then coming to social science, which is I know a very tough subject for all of you. इस सब्जेक्ट्स में क्लास 10th के बच्चों को बहुत डिफिकल्टी लगती है, जैसे जैसे वो और चैप्टर्स करते चले जाते हैं। एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज जिसको जब जितना जितना सिलेबस बढ़ता चला जा रहा था उतना उतना डिफिकल्ट लग रहा था। बट सी, just have a look once again at my mark sheet. I have scored 96 marks in social science. And you won't believe that I was one of those जिसको एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल भी। क्योंकि इसमें फर्स्ट थिंग क्रैमिंग होती है जो कि बिल्कुल नहीं हो पाती है। एंड सेकेंड थिंग, इसमें हमें चीजें जो हैं वो अपने माइंड में फिट करके रखनी पड़ती हैं। You have to store the things, and जितना जितना सिलेबस आगे बढ़ेगा उतना उतना हम पे वर्कलोड बढ़ता चला जाएगा। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन सोशल साइंस कि आपको, if आप एक पर्टिकुलर चैप्टर लेके बैठे हैं तो आपको चैप्टर खत्म करके ही उठना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर सिलेबस में लैग कर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे और फिर लास्ट में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यू हैव टू क्रैम ऑल द ईयर्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। हमारे एनसीईआरटी में जितने भी ईयर्स प्रेजेंट हैं, स्पेशली इन हिस्ट्री में हमारे काफी सारे ईयर्स होते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दैट ईयर्स। अब उसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपको सारे ईयर्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑल का मतलब है यहाँ पे जो कि ऑल इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं। इम्पॉर्टेंट ईयर्स सब कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे ही जाइए, और यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई हुई है कि इम्पॉर्टेंट ईयर्स इन एनसीईआरटी हिस्ट्री, या फिर द टाइम लाइन इन एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री। तो इस तरीके की जो वीडियोस हैं उनको आपको देखना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा इसमें। बिकॉज इसमें जो मैंने भी लर्निंग की थी वो भी उसी बेसिस पे की थी कि मैंने चैनल्स की वीडियोस देखी थी एंड वहीं से मैं समझ पाया था कि कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ही वो चीजें आपको बता दूं, सो नो प्रॉब्लम, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो जिसमें कि मैं स्पेशली ईयर्स की ही वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा एक साथ। बट ईयर्स के अलावा आपको एनसीईआरटी से और कुछ भी लर्न नहीं करना है, क्रैम नहीं करना है। लिसन, क्रैम कुछ भी चीज नहीं करनी है एक्सेप्ट द ईयर्स। नेक्स्ट थिंग, रेफरेंस बुक इज मस्ट रिक्वायर्ड। अगर आप रेफरेंस बुक नहीं लेंगे तो 100% आप जो एग्जाम होगा उसमें फेल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल का एग्जाम काफी टफ आता है एंड अगर आप नहीं लेंगे तो आप 100% एसएससी में फेल हो जाएंगे। अब मैं रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट बता देता हूँ क्यों होनी चाहिए हमारे पास रेफरेंस बुक। फर्स्ट थिंग, उसमें एक शॉर्ट रिकैप होता है हर चैप्टर का।
चैप्टर वाइज शॉर्ट रिकैप होता है, बिकॉज जब हम बाद में जब हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं तब हमें लगता है कि अब ये पूरा चैप्टर बैठ के कौन पढ़ेगा। सो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर चैप्टर का उसमें शॉर्ट रिकैप होता है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन्ड होती हैं, तो आपको वो बुक लेनी है। एंड दिस इज टू टेल यू कि एसएसटी की रेफरेंस बुक मैंने कम से कम 3 या 4 बार ली है एंड रिप्लेस करी है, फिर दोबारा आई है, रिप्लेस करी है, फिर दोबारा आई है फ्रॉम द ऑनलाइन मीन्स, बिकॉज मुझे बुक समझ ही नहीं आती थी। देन बड़ी मुश्किल से मुझे जाके सोशल साइंस की बुक मिली थी जो कि मैंने यूज करी थी। सो यही चीज मैं आपको भी कहना चाहूंगा दैट आपको बुक ढूंढनी पड़ेगी कौन सी बुक आपको समझ में आ रही है। सेकेंड थिंग, जो हमारी सोशल साइंस की बुक होती है रेफरेंस बुक, उसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज देखने को मिलती है जिसमें असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें हमें आराम से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। थर्ड थिंग, उसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स ये भी मिल जाते हैं। तो इन 3 चीजों के वजह से हमें रेफरेंस बुक लेनी ही चाहिए। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट ही ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन सीक्वेंस। अब मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि आपको एनसीईआरटी में और कोई भी चीज क्रैम नहीं करनी है। अब तो क्रैम क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमारी जितनी भी एसएसटी में चैप्टर्स है या फिर बुक्स हमें दी गई है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड मीन्स कि उसमें जितने भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस वजह से आपको चीजें जो है वो याद नहीं करनी है, आपको हर एक बुक सीक्वेंस में याद करते चलनी है। नॉट इवन याद, आपको जो एक स्टोरी जैसे हम सुनते हैं उस स्टोरी की तरह आपको सारी चीजें सुनते चली जानी है। और अगर आपको एक बारी वो स्टोरी समझ में आ गई तो स्टोरी से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर आराम से दे देंगे। तो इसलिए एसएसटी को कभी भी अपनी अप्रोच ये मत बनाइएगा कि आपको उसमें चीजें जो है वो आपको याद करनी है। आपको एक स्टोरी की तरह हर एक चैप्टर को सीक्वेंस में समझना है। और अगर आपके टीचर्स आपको स्टोरी वाइज या एक सीक्वेंस में नहीं बता रहे हैं चैप्टर, तो आप उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि हमारे सारे चैप्टर्स एक स्टोरी की तरह, आपकी हर एक बुक जो है वो एक पूरी स्टोरी है जो कि सीरीज वाइज कंटिन्यू हो रही है। तो आपको स्टोरी वाइज समझना है या आपको अपने टीचर से जाके बोलना है अगर वो आपको नहीं समझा रहे हैं तो। और जो आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं दे आर सफिशिएंट कि वो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस करवाते चलेंगे फॉर द रिवीजन पर्पस। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको चीजें समझने के लिए यूट्यूब की वीडियोस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने भी ली थी। मैं तो अभी वो वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बट मैं भी जल्दी वो वाली वीडियोस अपलोड करूंगा जो कि क्लास 10th के सिलेबस की होगी फॉर द एसएसटी पर्पस, because now I have understood each and everything in our syllabus. But when I was in class 10th, I was very scared about the SST, so इस वजह से मैंने हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर की वीडियो यूट्यूब से ही देखी थी। एंड ऑफ कोर्स आपको भी देखनी चाहिए, अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आते हैं एक बारी में तो आपको यू मस्ट गो फॉर दैट। एंड अगेन चैनल आप वो चूज करिए जिसमें आपको चीजें समझ में आ रही हैं, जिसकी चीजें आप इजीली समझ पा रहे हैं। आई वोंट टेक एनी नेम। नेक्स्ट, कमिंग टू द एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आपके स्कूल में है तो आप ये वाला पार्ट सुन लीजिए, अगर नहीं है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर दीजिए। एडिशनल सब्जेक्ट हमारे जो स्कूल में होता है
वो इसलिए दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, सो वो सब्जेक्ट आपके उस मार्क्स को बढ़ा के आपको फेल होने से बचा लेता है। एंड हमारे स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट के नाम पे था एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, कंप्यूटर भी बोलते हैं इसे स्कूल में, बट उसका एडवांस नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये था हमारे स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट। तो एडिशनल सब्जेक्ट आपके स्कूल में कोई भी हो, उसके लिए आपके लिए सेम अप्रोच ही होनी चाहिए। पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल से जो बुक मिली है उस एडिशनल सब्जेक्ट की, आपको वही बुक रेफर करनी है। उसके अलावा नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर बुक। आपको सिर्फ वही बुक को ही रिवाइज करना है, उसके अलावा बाहर से और कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग, इवन अ सिंगल वर्ड आउट फ्रॉम दैट बुक। बिकॉज जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो उसी हिसाब से ही बुक सिलेक्ट करते हैं जिस हिसाब से पेपर आता है। इस वजह से आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कोई और चीज मत यूज करिएगा, सिर्फ जो स्कूल से बुक मिली है उसी को ही आपको यूज करना है। And you have to read each and every line of that book, of course, very carefully. आपको हाईलाइट करते हुए चलना है सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बुक के अंदर ही। एंड अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी टीचर आपको क्लास में बता रही है तो वो आपको वहीं साइड में ही बुक में लिख लेनी है। एंड नथिंग एल्स देन दैट। सिलेबस जो एडिशनल सब्जेक्ट का होता है वो थोड़ा थोड़ा करके ही चलाया जाता है स्कूल में। पहले थोड़ा पार्ट हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, क्योंकि इसमें से सिलेबस काफी कम आता है। इस वजह से हम जो हमारी प्रैक्टिस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इजीली कर पाते हैं। एंड फाइनली जब हमारा बोर्ड एग्जाम आता है तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जो आपने खुद मार्क करी हुई अपनी बुक में, वो आपको एग्जाम से एक दिन पहले वो सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। एंड 100% एग्जाम उसी में से ही आएगा, बिकॉज हमारा एग्जाम भी 100% उसी बुक में से आया था। उससे एक वर्ड भी हमारा बाहर नहीं गया था एग्जाम का। एंड एडिशनल सब्जेक्ट के लिए हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो लेकिन आपको पूरा टाइम यूटिलाइज करना है अपना। नॉट कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म जल्दी हो गया तो आप उसी को ही वहीं पर ही छोड़ देंगे। यू हैव टू यूटिलाइज योर होल टाइम बाय डूइंग द पेपर। आपको एक एक आंसर बिल्कुल अच्छे से डेकोरेटिव फॉर्म में लिखना है, जो कि आपके टीचर्स आपको ज़रूर बताएंगे, स्कूल वाले एंड नहीं भी बताएंगे। सो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट इवन। सो ये था हमारा एडिशनल सब्जेक्ट का व्यू। एंड देन you have completed the information about all the subject wise strategy. Now this is to tell you that class 10th is very easy. जस्ट आपको इस पे विक्ट्री करने के लिए 3 चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। एंड वो 3 चीजें क्या है? फर्स्ट थिंग इज हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क करे बिना किसी ने कुछ नहीं करा है। हार्ड वर्क मैंने भी बहुत ज्यादा करा था अपनी तरफ से। सेकेंड थिंग डेडिकेशन। एंड एसएसटी में एक और चीज कहना चाहूंगा कि आपको जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपको सुबह उठ के 5 बजे एटलीस्ट जो हमने बुक ली थी रेफरेंस बुक, उसमें से आपको जो चैप्टर की शॉर्ट समरी वो एक बारी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैथ्स और साइंस में भी आप ये वाली चीज कर सकते हैं, जो शॉर्ट समरी दी हुई होती है वो पढ़ सकते हैं, बट नॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी। दिस इज टू माइंड यू। एंड नॉट इवन इन एडिशनल सब्जेक्ट। एक दिन पहले ही उसमें जो भी करना है करना है। एंड हार्ड वर्क आपको ये भी करना है कि आपको रोज सुबह जब आप स्कूल जाने लगेंगे
एग्जाम से एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले, तो आपको स्कूल जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर भी सारी चीजें रिवाइज करनी है। एग्जाम से 2 मंथ्स पहले, उससे पहले अगर आप चाहे तो ये चीज अवॉइड कर सकते हैं, बट एग्जाम से 2 मंथ्स पहले तो आपको ये वाली चीज स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज डेडिकेशन। आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी चीज में लैग नहीं करने चाहिए। एंड अगर आपको टीचर समझा रहा है तो आपको उस टाइम जरूर समझना है। नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। मीन्स आप अगर एक दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको अगले दिन भी 3 घंटे ही पढ़ना है। एंड अगर मैं आपसे 3 से 4 महीने बाद पूछूं तो भी आप 3 घंटे ही पढ़ रहे होने चाहिए। This is what we call consistency. Consistency is a important key for the success, I would say. If आप कंसिस्टेंसी नहीं होंगे तो आप जो चीज़ें हैं वो पीछे छोड़ते चले जाएंगे, या फिर आप पूरी चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। सो इस वजह से आपको कंसिस्टेंट ज़रूर रहना है। एंड दिस इज टू टेल यू दैट सिर्फ पढ़ते भी नहीं रहना है, because on my channel itself you will see that मैंने क्लास 10 में कितनी स्पीचेस दी हैं एंड कितना कुछ करा है। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे ही अपलोडेड है। इफ यू वांट देन यू कैन सी इट फ्रॉम माय चैनल। सो this this was what all for this video, and I hope that ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। If you like the video, then subscribe to the channel. Make sure to share it with your friends, and do comment me down if you have any of the doubt in any of the thing. And congratulations for being in class 10th. Then goodbye. We'll meet you